یہ ہے مصر، ایک شہر جہاں طاقت نے عبادت کی جگہ لے لی تھی اور ایک انسان پر خدا بن کر راز کر رہا تھا۔ میں ہوں مصر کا بادشاہ، میرا حکم ہی قانون ہے، کوئی سانس بھی میری اجازت کے بنا نہیں لے سکتا۔ بے شک فرعون نے زمین میں گھمنڈ کیا اور لوگوں کو حصوں میں بانٹ دیا۔ فرعون کا ظلم حدوں سے گزر چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرواتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کے گھروں میں صرف خوف زندہ رہے۔ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ وہ واقعی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تمہارا بچہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اس نے اپنی آخری سانسیں دے دی۔ اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی مظلوم اور کمزور قوم کو اٹھائے گا تاکہ وہ اس تاج کو گرا دیں جسے فرعون نے خدا سمجھا تھا۔ فرعون کو خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک بچہ جنم لے گا جو اس کی سلطنت کو ہلا دے گا۔ بنی اسرائیل کی اولاد پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، ایک ایسے دور میں جب فرعون کا ظلم اپنے چرم پر تھا، اور موسیٰ فرعون کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بننے والے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو ہدایت دی، جب فرعون کے لوگ آئیں گے تو اسے دریا کے حوالے کر دینا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ موسیٰ کی بہن دریا کے ساتھ چلتی رہی، چپکے سے، خاموشی میں، اور اسے خبر بھی نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے قدموں پر نظر رکھ رہی ہے۔ اور یوں دریا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے موسیٰ کے پلنے کو سنبھال کر اس راستے پر بہا دیا جہاں تقدیر نے اس کا انتظار لکھ رکھا تھا۔ اور وہیں فرعون کے محل کے سائے میں آسیہ کی نگاہ دریا میں ایک پلنے پر ٹک گئی۔ اس پل ظلم کے محل میں پہلی بار رحمت اتری تھی۔ مولائے مصر آسیہ بی بی نے دریا سے ایک انزان بچہ اٹھا لیا ہے۔ ایک بچہ دریا سے؟ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کے ہاتھوں میری سلطنت مٹنے والی ہے؟ فرعون کے دل میں ایک گہرا خوف جاگ اٹھا۔ اس بچے کو ہم اپنے محل میں نہیں رکھ سکتے، کیا پتا یہی وہ ہو جس کے ہاتھوں میری طاقت، میری سلطنت، سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ نہیں، یہ بچہ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمارے گھر کے لیے برکت۔ رحمت کہہ رہی ہو آسیہ؟ مجھے ڈر ہے یہ بچہ ہماری تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ ہر ماں نے کوشش کی پر جیسے اس کے نصیب کا رشتہ کسی اور سے جڑا۔ اور اللہ نے پہلے ہی موسیٰ پر سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں بنی اسرائیل کی ایک تائی ہے، اسے بلوا دو، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ چلو، آسیہ بی بی نے تمہیں محل بلایا ہے، دیر مت کرو، ترنت تیار ہو جاؤ۔ محل میں تیری بیٹی ملی تھی، اس نے کہا میری ماں کا دودھ شاید وہ بچہ پی لے گا، بس اسی لیے میں تمہیں محل بلانے آیا ہوں۔ آؤ، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، شاید تمہارا ہاتھ اس کے نصیب کا لکھا ہو۔ اور اس طرح موسیٰ کی ماں اپنے بچے سے دوبارہ ملی تاکہ سب سمجھ لیں رب کا وعدہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے ماں بننے کا احساس بخشا، یہ بچہ میری زندگی کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور یوں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، جسے دریا میں بہایا گیا تھا وہ اب فرعون کے محل میں رحمت بن کر پلنے لگا۔
और जब मूसा जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा, ताकि दुनिया जाने कि जब रब चाहे एक गुलाम भी कैद से तकदीर लिखता है। एक दिन मूसा शहर के उस हिस्से में गया जहां बनी इज़राइल रहते थे। वहां उसने दो आदमियों को लड़ते देखा, एक उसकी अपनी कौम का और दूसरा फिरौन के लोगों में से। मूसा ने गुस्से में एक मुक्का मारा और वो आदमी वहीं गिरकर मर गया। ऐ मेरे रब, ये शैतान का काम था, मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया। तू ही है जो माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। और रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, मूसा को माफ कर दिया, ताकि दुनिया समझे जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो रहमान कभी मुंह नहीं मोड़ता। अगले दिन मूसा ने उसी शहर में उसी आदमी को फिर लड़ते देखा जो कल भी झगड़े में था। आज फिर जुल्म की आग में भड़का हुआ था। ए मूसा, क्या आज मुझे मारने आए हो जैसे कल उस आदमी को मार दिया था? लगता है तुम्हारा इरादा सिर्फ कत्ल करने का ही है। उस आदमी की बात सुनकर लोग सरगोशियां करने लगे और सबको मालूम हो गया कि मूसा ने एक आदमी का कत्ल किया था। मैं सच कह रहा हूं, मूसा ने उस आदमी का कत्ल किया है। सुनो, फिरौन के अफसरों ने आपके खिलाफ एक साजिश रची है। यहाँ रुके तो आपकी जान को खतरा है। बरहे करम जल्दी निकल जाइए, शहर छोड़ दीजिए। ये खबर सुनते ही मूसा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधे मिस्र से निकल पड़े और उनका सफर मदियान की तरफ जारी हो गया। मूसा ने लंबे सफर का रुख किया, न साया न साथी, सिर्फ खामोश रेगिस्तान। कभी धूप उनके जिस्म को जला देती तो कभी ठंड उनके होठ सुखा देती। और यूं मूसा चलते रहे, तूफान, भूख और तन्हाई के दरमियान हर मंजिल उनकी कदम चूमती गई, क्योंकि उनका रास्ता रब के लिखे हुए वादों से रोशन था। लंबे सफर के बाद मूसा मदियान के एक कुएं पर पहुंचे। मदियान के उस कुएं पर मूसा ने दो लड़कियां देखीं जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी थीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मैं तुम्हारे लिए पानी भर देता हूं। मूसा ने बाल्टी उठाई, कुएं से पानी निकाला और उनके जानवरों को इस कदर सुकून से पिलाया जैसे एक फर्ज अदा कर रहा हो। आप हमारे साथ चलिए, हमारे अब्बू आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तीनों मदियान के बुजुर्ग शख्स के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा में सुकून था, जैसे रब खुद उनका रहनुमा हो। अब्बू, हमारे साथ एक शख्स आया है। उसने कुएं पर हमारी मदद की थी और हमारे जानवरों को पानी पिलाया। उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी से कहा, उस शख्स को अंदर बुलाओ ताकि मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपको अब्बू अंदर बुला रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके अब्बू से मिलकर। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बेटा बताओ, तुम किस हाल में यहाँ तक आए हो? मैं मिस्र से निकला हूँ। लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, बस रब पर भरोसा करके निकल पड़ा। डरने की जरूरत नहीं बेटा, तुम अब अमन में हो। यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आपका शुक्रिया। बहुत दिन बाद किसी ने इतनी मोहब्बत से बात की है। सफर लंबा था, पर लगता है अब दिल को सुकून मिल गया। अब्बू, जरा एक पल के लिए इधर आना। अब्बू, आप इसे अपने काम पर रख लीजिए। ये शख्स मजबूत भी है और दिल से नेक भी। बेटा, मुझे लगता है तू सिर्फ मजबूत नहीं, अमानतदार भी है। अगर तू राजी हो तो मैं अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुझसे करना चाहता हूँ। ये आपका एहसान होगा। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि रब मुझे इस कदर काबिल बना दे। इस निकाह की एक शर्त है बेटा, तू मेरे साथ 8 साल तक काम करेगा। अगर 10 साल पूरे कर दें तो ये तेरी मर्जी होगी। मैं कबूल करता हूँ। ये काम भी और ये रिश्ता भी, दोनों मेरे लिए बरकत हैं। और यूं मूसा को एक नया घर मिला, एक रिश्ता मिला और एक नई जिंदगी
जहां से उनकी नबूवत के सफर की बुनियाद रखी गई। वो पूरा घराना दिन में मेहनत करता और शाम होते ही रब का शुक्रिया अदा करता। उनकी जिंदगी सुकून, बरकत और खुशी से ऐसी भरी थी जैसे रहमत ने उनका घर बसा लिया हो। और जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो वो अपनी बीवी के साथ मदियान से निकलकर मिस्र की तरफ रुख कर गए। बेशक सफर लंबा था, रात गहरी होती जा रही थी। मूसा और उनकी बीवी थकान और ठंड दोनों से लड़ रहे थे और उसी सर्दी भरी खामोशी में मूसा की नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी। दूर से एक आग का नूर उभर रहा था, जैसे अंधेरे में रहमत चमक उठी हो। और यो मूसा धीरे धीरे उस आग के करीब पहुंच गए। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। और यूं वो वक्त आया जब अल्लाह ने मूसा से सीधा बात की। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे। तू मुकद्दस वादी तुवा में है और मैंने तुझे चुना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ने फरमाया, और तेरे हाथ में ये क्या है मूसा? ए मेरे रब, ये मेरी असा है। और अल्लाह ने फरमाया, उसे जमीन पर डाल दे मूसा। फिर जब उसने उसे डाला तो वो एक सांप बन गया जो तेजी से हिल रहा था। अल्लाह ने फरमाया, उसे पकड़ ले और डर मत, हम इसे फिर अपनी पहली हालत में लौटा देंगे। और फिर अल्लाह ने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने बगल में डाल, वो बिना किसी नुकसान के चमकता निकलेगा। ये एक निशानी है। अल्लाह ने मूसा से कहा, जा फिरौन के पास जा, वो हद से बढ़ गया है। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना, मेरा भाई हारून। उसके जरिए मेरे हाथ मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। और फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरा सवाल कबूल हुआ मूसा, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। और यूं अल्लाह के दो पैगंबर मूसा और हारून वापस उसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था, लेकिन अब रहमत का पैगाम जा रहा था। देखो तो कौन लौट आया है, मूसा अपने भाई हारून के साथ। मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूं। अजीब है मूसा, जिसे मैंने अपने महल में पाला, आज वही मेरे सामने अपने रब का पैगाम लेकर आ गया। बताओ मूसा, तुम वही हो ना जिसने हमारे आदमी का कत्ल किया था? और बताओ मूसा, ये तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? वो तुम्हारा भी रब है फिरौन। वो मशरिक और मगरिब का रब है और जो कुछ इनके दरमियान है, अगर तुम समझ पाओ। अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब बनाया तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। क्या अगर मैं तुम्हारे सामने कोई साफ सबूत ले आऊं तो फिर भी यकीन नहीं करोगे? तो ले आ अपना सबूत, अगर तू सच्चा है। और फिर अल्लाह ने मूसा से फरमाया, अपनी असा फेंक फिरौन के सामने। मूसा ने असा जमीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सांप बन गई, ऐसी जोश भरी हरकत से कि फिरौन का तकब्बुर भी पल भर को डर गया। शहर के बेहतरीन जादूगर बुलाओ ताकि हम मूसा के जादू का जवाब दे सकें। आज फिरौन ने फैसला कर लिया था, या तो जादू जीतेगा या हक। और फिर मिस्र के सब जादूगर बुलाए गए। तुम पहले फेंको या हम फेंकें? पहले तुम फेंको। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और एक अजीम जादू दिखा दिया। और ये देखकर मूसा के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। अल्लाह ने मूसा से कहा, मत डर मूसा, तू ही बुलंद रहेगा और फेंक दे जो तेरे हाथ में है। वो उनके बनाए हुए सब जादू को निगल लेगा। उनका जादू सिर्फ एक धोखा है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता। और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उसमें जादू नहीं, रब का नूर था। ए मूसा, तेरे जादू ने मेरे लोगों के दिलों में फितना फैला दिया है। तू और तेरा कौम बनी इजराइल निकल जाओ मेरे मिस्र से। फिरौन समझ रहा था कि वो मूसा को निकाल रहा है,
मगर असल में अल्लाह उसे अपनी कुदरत का मंजर दिखाने ले जा रहा था। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपने बंदों को रात के वक्त ले चलो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पीछा करेगा। और जब फिरौन को खबर मिली, उसने अपने सिपाहियों को बुलाया कि मूसा और उनकी कौम भाग गए हैं। और फिर फिरौन निकल पड़ा अपनी फौज के साथ, गुरूर और गुस्से में डूबा हुआ। फिरौन का लश्कर पहुंच गया, अब हम पकड़े गए ना, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी असा समंदर पर मार दो। और समंदर दो हिस्सों में बट गया, दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह जम गया। और मूसा अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। मगर कहानी यहां रुकती नहीं। फिरौन गुस्से और गुरूर की आग में जलता हुआ अपनी खौफनाक फौज के साथ निकल चुका था। मूसा, हारून और बनी इसराइल के निशानों के पीछे तकदीर अपनी सबसे बड़ी तकरार लिखने वाली थी।